Good morning, everyone. So, we are going to start the exercise of our chapter number 21 Prejudice, Discrimination, and Inequality. So, starting from the first question, which is take the right option. The first one is prejudice are. So, prejudice is what? Unfavorable opinion formed without the examination of the fact. कि क्या एक्चुअली फैक्ट है उसे एग्जामिन किए बिना ही वी आर जस्ट एज्यूमिंग ऑल दैट. सेकेंड वन इज वन ऑफ द बेसिक कॉजेज ऑफ द प्रेजुडाइज. तो क्या है? लैक ऑफ इंसेंसिटिविटी. थर्ड वन इज इन अ सेक्युलर कंट्री और रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. Moving to the fourth one, a stereotype is based on prejudice. Fifth one is the Constitution of the India states that all Indians are equal before the law of, means सारे Indians को equal right मिलता है. Question number 2 is true or false, or rewrite the statement to correct them. The Constitution of the India encourages the religious intolerance. No, it's false. The Constitution of the India encourages religious tolerance, not intolerance. Okay. Second one is caste distinction is no longer found in India. False. Caste distinction is still exists in India. अभी भी है. Third one is gender disparity can give rise to the inequality. True. Dr. Bhim Rao Ambedkar played a key role in forming the Indian Constitution. Yes, it's definitely the truth. Untouchability has been legally banned in India. Yes, it's true. It's been legally banned. Moving to the question third, answer the following question in one sentence. What is the result of social bias? The social bias, the result of the social bias is it led to the conflict between various social groups. वो लड़ाई करवाता है दो social groups के बीच में. It can retard the process of economical development in a country. मतलब कि वो हमारा development जो है progress है हमारे country का वो रोक देगा. And it can also create the atmosphere of disunity and disharmony. मतलब united नहीं रहेंगे हम लोग. Moving to the second one, what is created when we fit all the persons of a particular group in one fixed oversimplified image? Stereotypes are created क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं सारे लोगों को एक ही इमेज में फिट करने की. That will form the stereotypes. Moving to the third one, name one thing that can give rise to the inequality. Then the discrimination give rise to the inequality. क्या inequality को rise देता है? Discrimination. How many fundamental rights are there? There are total 6 fundamental rights in our constitution. Moving to the fifth one, what is the right to the constitutional remedies? मतलब ये वही वो right है जिसमें अगर आप कोई भी citizen को उनकी कोई भी right नहीं मिल रही है, then they can go to the court. They can approach the court of the law if there any fundamental rights are not been fulfilled. Moving to the fourth question, answer the following question in brief. What is meant by the term prejudice and outline a few cases? Prejudice मतलब क्या होता है? Based, social bias, preconvenience, unfavorable opinion, formed something or someone without examining a fact is called prejudice. मतलब किसी इंसान के बारे में कुछ भी जाने बगैर हम कोई भी बात बताते हैं, that is known as a prejudice. और उससे बहुत सारे केस causes हो सकते हैं. Like हमने यहाँ पर 2 का नाम लिया है. The basic causes of the prejudice is ignorance. When people form an opinion before having the evidence of the truth. अगर सच्चाई जाने बगैर अगर आप कोई भी डिसीजन फॉर्म कर लेते हो, कोई ओपिनियन फॉर्म कर लेते हो, तो वो इग्नोरेंस में रिजल्ट हो जाता है. एंड ऑल्सो फॉर द लैक ऑफ द सेंसिटिविटी. सेकेंड वन इज स्टेट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द प्रेजुडाइज. प्रेजुडाइज के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी सोसाइटी के लिए. उसके नेगेटिव इफेक्ट्स है Prejudice leads to the conflict among communities. Communities के बीच में लड़ाई, which constitutes a major threat to the peace. जो peace बिल्कुल भी नहीं रहती है nation के अंदर. Prejudice जो है वो mistrust को strength करता है, suspicion मतलब कि doubt को strengthen करता है, और hatred जो है एक दूसरे के लिए वो बढ़ाता है. Prejudice है वो racial arrogance को भी करता है. वो जो gap होता है दो चीज़ों के बीच में, दो groups के बीच में, दो caste के बीच में, उसे वो बढ़ाता है. Prejudice leads to the disunity and disharmony in the society. वो disunity और disharmony भी बढ़ाता है. और वो क्या करता है कि जो unity और integration का जो block है ना, वो उसे stumbling कर देता है, वो उसे हिला देता है. और prejudice जो है वो हमारे nation का progress को भी रुकवा देता है. So these are the diseffects or negative effects of the prejudice.
Third one is what is meant by the term stereotype and explain with the one example. Stereotype मतलब क्या होता है? It means कि जब आप सारे इंसान को एक ही फोटोग्राफ में एक ही ओवर सिंप्लीफाइड इमेज में फिट करने की कोशिश करोगे, then it will form as a stereotype. Like what is the example? Girls are not good at maths and fixing things. आप इसमें कोई भी एक लिख सकते हो, मैंने बहुत सारे लिखे, आप कोई भी एक लिख सकते हो. Boys don't cry, लड़के रोते नहीं, लड़के नॉटी होते हैं, लड़कियां जेंटल होती है. ये सारे स्टीरियोटाइप्स है, ये सारे सही नहीं है, क्योंकि सारे लड़कियां या सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं. सब लोग अलग अलग होते हैं, सब लोगों की एक यूनिक पर्सनालिटीज होती है. मूविंग टू द फोर्थ वन, Name two Indian leaders who fought against the social discrimination and which issues did they address. हमारे जो दो इंडियन लीडर्स हैं, सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती सिस्टम के अगेंस्ट फाइट किया था और उन्हें इलीगल प्रैक्टिस बना दिया था इंडिया में. सेकेंड वन इज ज्योतिबा फूले, जिन्होंने इरेडिकेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, मतलब कि जो ये कास्ट है वो निकालना और अनएम्प्लॉयमेंट को एस्टैब्लिश किया था. फर्स्ट स्कूल्स फॉर द गर्ल्स, उन्होंने सबसे पहली गर्ल्स की एजुकेशन के लिए फाइट आउट किया था. Moving to the fifth question, what does the term apartheid mean and outline the work of the whole world leader who fought against it. The policy apartheid मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कलर, ये ऐसा है वो वैसा है, वो एक बार हुआ था साउथ अफ्रीका में, मतलब बहुत सालों तक वो चला था ऑन द रेशियल डाइवर्सिटीज. apartheid जो था वो 1990s में एंड हुआ था, जब कि उनके जो एक बहुत ही फेमस लीडर थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने 27 ईयर्स वो प्रिजन में रहे थे इसे फाइट आउट करने के लिए, उसे टोटली रिमूव करने के लिए कि जो आप कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेट करते हो उसके लिए. सो नेल्सन मंडेला के सिवा कोई बेस्ट एग्जाम्पल नहीं, ही इज द ओनली वन एग्जाम्पल एंड द बेस्ट एग्जाम्पल. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. How is prejudice different from the discrimination? Explain giving examples. Prejudice और discrimination में क्या difference है? Prejudice में क्या करते हैं, हम अदर लोगों को जज करते हैं नेगेटिवली और हम उन्हें inferior दिखाते हैं. inferior मतलब कि हमसे नीचा दिखाते हैं. Prejudice है वो कब arise होता है, जब diversities होती है, equality नहीं मिलती लोगों को, ठीक है, वो है जब equality नहीं मिलती ना लोगों को, तब डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है. लाइक व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज कि अगर मेजर और माइनर कम्युनिटीज़ जो है तो वहाँ पर क्या रिजल्ट होगा, प्रेजुडाइज. लेकिन डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि आप कोई भी एक इंसान या कोई भी एक इंसान के ग्रुप को आप क्या कर रहे हो, आप उसका जाने बिना ही आप उसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो. रिलीजियस वे में, आप उसे कलर के बेस में, इकोनॉमिकल वे में, बहुत सारी वे में आप उसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, आप उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी या चांस नहीं दे रहे हो, दैट इज नोन एज एन डिस्क्रिमिनेशन. और जब आप किसी को जज करते हो दैट इज प्रेजुडाइज. मूविंग टू द सेकेंड वन, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन एंड गिव द सोर्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन. जैसे मैंने अभी बताया, डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि आप किसी भी इंसान को या ग्रुप ऑफ द पर्सन को एक इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते हो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजुडाइज, और उन्हें आप डेवलप होने का भी मौका नहीं दे रहे हो. और वो कैसे होता है डिस्क्रिमिनेशन, कौन कौन से बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के ऊपर, उनके कलर के ऊपर, उनके जेंडर के ऊपर और उनके इकोनॉमिकल ऊपर. Moving to the third one, state two stereotypes used for the girls and two for the boys. Who would you interpret the stereotypes and suggest the way to break them? Stereotypes जो बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे लोग बनाते भी हैं. गर्ल्स के लिए है कि वो मैथ्स में अच्छी नहीं है और वो चीज़ें फिक्स नहीं कर सकती. बॉयज़ आर नॉटी एंड गर्ल्स आर जेंटल. ये दो stereotypes है और ऐसे stereotypes जो है वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट भी कर सकते हैं और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और झगड़े भी हो सकते हैं. और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सारे इंडिविजुअल्स या सोशल ग्रुप्स ये इस चीज़ एक्सेप्ट कर ले कि सब लोगों का काम करने का तरीका एक जैसा नहीं होता है, सब लोग अलग अलग वे में काम करते हैं. बट वी शुड अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स वे ऑफ वर्किंग एंड वी शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स ईच अदर. सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन ब्रेक आउट दिस स्टीरियोटाइप्स. Moving to the fourth question, mention the harmful effects of the discrimination and how can they be removed. Discrimination से क्या होता है कि religious riots हो सकते हैं, फिर religions में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने religion की तारीफ करते हैं लेकिन दूसरों के religion को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. फिर सारे कास्ट को equal opportunities नहीं मिलती है, citizens को allow नहीं किया जाता है अपनी right के लिए, जैसे कि वोट करना, स्टडी करना, वो भी नहीं मिलता है. बहुत सारे differences होते हैं दो जेंडर
जेंडर के बीच में, लड़का ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती है, और डिस्पैरिटी भी हो सकती है वेल्थ के अंदर और कंट्री के लोगों के अंदर। तो क्या एफर्ट्स करने चाहिए डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए? तो हमें मेंटेन करना चाहिए सोशल इकोनॉमिकल इक्वालिटी को, और हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसे इक्वल रख सकें। स्पेशल मेजर्स शुड बी टेकन टू रिमूव इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल द काइंड्स। इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए हमें स्पेशल मेजर्स भी लेने चाहिए। इक्वालिटी जो सारे इंडिविजुअल्स का राइट है वो देना चाहिए, तो ही हम यूनाइट हो सकते हैं फिर से। And next one is list the fundamental rights that the Constitution of India has granted us. तो यहाँ पर हमें fundamental rights लिखी हुई है सारी की। फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, मतलब इंडियन लॉ के हिसाब से सारे जो है वो सारे इंडियंस इक्वल है, सबको सेम राइट और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उन्हें जो भी काम करना है वो उन्हें काम करना चाहिए, और नो वन कैन बी सीन एज अ क्राइम, कोई भी काम करना कोई गुनाह नहीं है, उन्हें कोई भी बात के लिए इल ट्रीटमेंट या खराब ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर या रिलीजन के नाम पर। और अनटचेबिलिटी जो है वो एक क्राइम बन चुका है अकॉर्डिंग टू दी लॉ। राइट टू दी फ्रीडम, मतलब कि कोई भी इंडिया का लोग कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है, वो कहीं पर भी कोई भी जॉब ले सकता है। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता तुम ये काम करो ना करो, पे मत करो, पे नहीं करूँगा लेकिन तो भी तुम ये काम करो, वो ऐसे एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते। राइट टू द फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो अपनी चॉइस का। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, मतलब कि अपनी खुद की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करना है, आप कर सकते हो। यू हैव, एवरी कम्युनिटी कैन गिव देयर ओन, अपनी खुद की लैंग्वेज में बात करना, अपने स्क्रिप्ट्स, कल्चर्स को यूज़ करना, दे हैव राइट टू डू ऑल दिस थिंग्स। So this was about our chapter number 21. Thank you everyone and have a nice day.